Yes, so do we have some doubts today? If somebody has any doubts, please let me know. Otherwise, we'll start. Okay, so let's start. Our first topic for today will be today we'll be going heavy with authorities and organizations because due to the ongoing conflicts, some in the nation and some in the international arena, many organizations have been in question and in news. So we'll start with the organization. The first one would be FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India. फुल फॉर्म मत लिखो. दो टाइप की बॉडीज होती हैं. there are statutory bodies and there are executive bodies. So if somebody knows about it, please tell me ki whether it's a statutory body or an executive body. Statutory body. Yes, students. Anyone? It's a statutory body. Okay. And it's a statutory body established by the Food Safety and Standards Act of 2006. Okay. It comes under the Ministry of Health and Family Welfare. Comes under the Ministry of Health and Family Welfare. Also, there are some campaigns that are run by this Food Safety and Standards Authority. So just write about those campaigns. Number one is heart attack. Rewind campaign. Heart attack rewind campaign. ओके इसके बारे में थोड़ा लिख लो वर्ड्स. टू एलिमिनेट ट्रांस फैट्स in India by 2022. To eliminate trans fats in India by 2022, which is this year itself. Eliminate मतलब totally आप 0% नहीं कर सकते, but there are some values. For example, the present value in the foods are 2%, and in the next stage it will be around 1%, and subsequently we will go lower. इसमें पढ़ने की चीज है कि ट्रांस फैट्स होते क्या हैं. लिख लीजिए ये भी. These are unsaturated fats that naturally occur in meat and milk products. Unsaturated. ठीक है, ये अनसैचुरेटेड वर्ड अपना उसमें अंडरलाइन कर लेना नोटबुक में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो द नेक्स्ट इज ईट राइट कैंपेन. ईट राइट कैंपेन, इसके भी आगे लिख लो. टू इंक्रीज कस्टमर अवेयरनेस about eating safe and healthy foods. Recently, FSSAI
it has said that we are going to introduce a star rating campaign or star rating program to rate the products in the market. Okay, star rating क्या होती है? आप लोगों ने एसीज, टीवी, फ्रिज वगैरह खरीदने जाते हो, उसके ऊपर स्टार्स बने होते हैं. 3 स्टार होते हैं, 2 स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं, 5 स्टार होते हैं. तो इसका क्या मतलब होता है? किसकी कम होती है? मोर स्टार फॉर दी कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको कम देगा. somebody please tell me, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसीज, उनके अंदर जो स्टार रेटिंग होती है उनका क्या मतलब होता है? Please be responsive in the class. I don't want to get into the list and then pinpoint names to ask for answers. Somebody please tell me. It's a very common thing. What is meant by the star rating of appliances? Okay, so it means the more the stars, the more energy efficient the appliance will be, and it is given by Bureau of Energy Efficiency. Okay, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. Since we are reading, so we'll also read about Bureau of Energy Efficiency. Again, it draws its power from Energy Conservation Act 2001. एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. इस एक्ट के बारे में डिटेल में आप अपने एनवायरनमेंट की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे यू कैन राइट कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ड्रॉज इट्स पावर फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. comes under Ministry of Power. तो जैसे हमें जो स्टार रेटिंग है वो बताती है कि कोई अप्लायंस कितना एनर्जी एफिशिएंट है, उसी तरह जो FSSAI स्टार रेटिंग करेगी वो हमें बताएगी कि मोर द स्टार्स मोर हेल्दी द फूड इज. उसमें सॉल्ट कंटेंट, शुगर कंटेंट, ट्रांस फैट्स कंटेंट और भी जितने भी हमारे एडिटिव्स और एक्स्ट्रा चीजें डलती हैं, इफ दे आर अनहेल्दी तो उसमें स्टार कम हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोका कोला वगैरह वगैरह, उनकी स्टार रेटिंग एनी डे कम होगी. ठीक है, देन लेट्स से नेचुरल जूसेस और समथिंग. सो ये इनका कॉन्सेप्ट है. इज दिस अंडरस्टूड? शैल वी मूव फॉरवर्ड? I'm not getting it any response. Shall we move forward? Is this understood? Concurrence. Yes, sir. Okay, just a second. Video बंद करो. बोल के देखिए, बोल के देखिए. Can somebody speak something? So there was some issue. So shall we move forward? Yes. Okay. So let's. Yes, sir.
The next is we have been reading in the newspapers about SWIFT sanctions, right? SWIFT sanctions by USA, by European countries, and now even Switzerland, which has been in the history most, you can say, neutral powers. It has also joined the SWIFT sanctions now. Okay? So क्या होता है, इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझो. लेट्स से आप बैंक में गए, लेट्स से द बैंक इज SBI. Okay, this is you, and you have to send some money, let's say to your parents. उनका अकाउंट है ICICI बैंक में, आप हो यहाँ चंडीगढ़ में, ये है दिल्ली में. तो जो पैसा ट्रांसफर होता है, दिल्ली का एग्जांपल मतलब एग्जांपल ले लो दुबई का, ठीक है. दुबई में उनका कोई बैंक होगा, ICICI या एनी इंटरनेशनल बैंक. तो जो आपने पैसा भेजा टू लेट्स से NEFT थ्रू RTGS और एनी अदर सिस्टम, पैसा तो चला गया SBI से ICICI या किसी भी बैंक में, फ्रॉम चंडीगढ़ टू दुबई पैसा चला गया. लेकिन जो बैंक्स हैं वो आपस में बात करते हैं थ्रू दिस स्विफ्ट सिस्टम. SBI विल टेल ICICI या एनी इंटरनेशनल बैंक कि दिस ट्रांजैक्शन XYZ it is done and you please register it at your end and this will say okay registered. ठीक है. तो जो स्विफ्ट सिस्टम है ना, ये पैसा ट्रांसफर करने का कोई सिस्टम नहीं है, ये एक टाइप का मैसेजिंग सिस्टम है. टेक फॉर दैट मैटर व्हाट्सएप, ठीक है, या हाँ व्हाट्सएप, जैसे बैंक्स का व्हाट्सएप होता है उसी तरह स्विफ्ट है, सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग यूज होती है इसके अंदर. ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, अप्रूव होती हैं वगैरह वगैरह, इसके लिए कुछ लाइंस लिख लो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. इट प्रोवाइड्स अ ट्रस्टिंग मैसेजिंग सिस्टम that enables financial institutions to exchange information about global monetary transactions. That enables financial institutions. Okay, so SWIFT, it provides the trusted messaging system or platform that enables financial institutions to exchange information about global monetary transactions. For example, money transfers. बीच में उसके नीचे एक स्टार रेटिंग स्टार बुलेट पॉइंट बना के लिख लो, डज नॉट एक्चुअली मूव मनी. अगर क्वेश्चन आया तो वो प्रीलिम्स में इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इट इज अ मनी ट्रांजैक्टिंग प्लेटफॉर्म, तो उसमें मतलब ये अपने उसमें कैपिटल्स में लिख लो, डज नॉट एक्चुअली मूव मनी. ठीक है, 1973 में हुआ था एंड बेल्जियम बेस्ड है ये, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, बट मतलब ऐसे एक बार बस याद कर लो कि 1973 में था और बेल्जियम बेस्ड है. सो इसमें प्रॉब्लम ये है, इसके सैंक्शंस का क्या मतलब है कि जो रशियन सेंट्रल बैंक है, रशिया के मेजर बैंक्स है, रशिया ट्रांजैक्शंस करता है, अब वो ट्रांजैक्शंस कर नहीं पाएगा. ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा तो उसकी इकोनॉमिक जो उसकी फॉरेन एक्सचेंज है, या जो लेट्स से कि रशियन सेंट्रल बैंक के फॉरेक्स रिजर्व लेट्स से स्विस बैंक्स में पड़े हुए हैं, तो वो स्विस बैंक्स को मैसेज ही नहीं भेज पाएगा दैट वी वांट टू एक्सेस दीज फंड्स, एंड अगेन स्विस बैंक्स ने फिर उनके फंड्स भी फ्रीज कर दिए हैं. तो वो उस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं और ये इस तरह इट इज गोइंग टू हर्ट रशियाज इकोनॉमी. ओके, सो इसके अगेन मतलब क्योंकि एक मैसेजिंग सिस्टम है तो एनी डे इसके ऑल्टरनेट्स भी होंगे. Sorry, you're not audible. Yes, now you're audible.
पूछ रहा हूँ कि बैंक में अप्लाई कैसे, जैसे कि अपना उसका जो अभी बैंक अप्लाई कैसे करते हैं? तो ये स्टेट्स में नहीं नहीं नहीं, अप्लाई वाला सिस्टम नहीं है। देखो ग्लोबली एक पूरा सिस्टम है। जैसे आप व्हाट्सएप पे जाते हो, आप व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बनाते हो ना, उसी तरह बैंकिंग या जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो सारे इसमें जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, या जो भी इनका प्रोसेस होगा वो हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना समझो कि एक मैसेजिंग सिस्टम है, डज नॉट मूव मनी, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, चलें आगे। Shall we move forward? यस सर। Okay. So our next topic is about International Court of Justice. International Court of Justice. यही साइड में लिख लो, established in 1945. It is one of the 6 main principal organs, या फिर मेन मत लिखो, it is one of the 6 principal organs of the United Nations system, UN system. कौन कौन से हैं 6 वो देखते हैं। सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया इज करेंटली अ मेंबर, अ नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें जो वीटो वाली कहानी वगैरह जितनी भी आप सुनते हो वो सारी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में होती है। नेक्स्ट वी हैव इज इकोसॉक, इको ईसीओ एसओसी एब्रिविएशन लिख लो बाद में, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन वी हैव इज ट्रस्टीशिप, काउंसिल, this the trusteeship council, it is currently defunct. डिफंक्ट मतलब इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, वैसे एग्जिस्ट करती है बट प्रेजेंटली यूज नहीं है, कभी यूज आएगा तो उसको यूज कर लेंगे। सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, जहां पे सेक्रेटरी जनरल और उनका ऑफिस बैठता है पूरा, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो पांचों ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट, इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क इज इन यूएसए। ओके, और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हमारा, ये है इन हेग, हेग नेदरलैंड्स। हेग नेदरलैंड्स में एक जगह है पीस पैलेस करके। तो जैसे यू मस्ट बी रीडिंग अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यू मस्ट बी रीडिंग अबाउट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड दिस नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तीनों को तीनों हेग नेदरलैंड्स में ही है। अपने माइंड में एक बार रजिस्टर कर लो कि इंटरनेशनल जुडिशियल जितनी भी प्रोसेसेस हैं उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर इन हेग नेदरलैंड्स ओनली। एक दो कोई ना कोई वो होगा, आउटलायर होगा, वो प्रोबेबली स्विट्जरलैंड या सिंगापुर में होगा, बट हेग नेदरलैंड्स जुडिशरी, इसको याद कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इसका एक बार ये देख लेते हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी, आईसीजे, इट हैज 15 जजेस, जल्दी जल्दी रनिंग नोट्स लिख लो। इट हैज 15 जजेस
with 9-year term. और एज सेम एज राज्यसभा, मतलब जैसे उनकी रिटायरमेंट्स होती है कि 1/3 ऑफ द जजेस रिटायर एवरी 3 years. राज्यसभा में 2 साल होते हैं, 2 साल में रिटायर होते हैं. इसमें 1/3 मेंबर्स दे रिटायर एवरी 3 years. 15 जजेस, 9-year टर्म. और इंडियन एक जज है इसके अंदर अभी प्रेजेंटली फ्रॉम 2012 जज है. अच्छा, इनका री इलेक्शन हो सकता है, ठीक है, लिख लो. सॉरी, नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल. Did somebody say something? Okay, moving forward. The judges can be re-elected. Please repeat. Please repeat. Please repeat. So there is a lot of disturbance. क्या नहीं समझ आया ये बताओ. सर बीच-बीच में कनेक्शन टूट रहे हैं सर, फिर से बीच में सेकेंडरी से आवाज नहीं. There might be some problem with the connection. Actually, that we cannot check right now. So we will have to make do at least for this class. ठीक है, नहीं तो in between if अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो we'll take a 5-minute break and try to resolve it. Okay, I'll just repeat. 15 जजेस होते हैं, 9-year टर्म होती है, 1/3 जजेस हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं. री इलेक्शन हो सकता है और इलेक्ट करता है इसे यूएन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सेपरेटली वोटिंग होती है और मेजॉरिटी होती है जिस कैंडिडेट के पास उसी को होती है. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इफ दिस इज फाइन बाय यू, शैल वी मूव फॉरवर्ड. Okay, so the next agency is IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. फुल फॉर्म याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इज एट वियना, ऑस्ट्रिया. अगेन, ये जो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जो न्यूक्लियर एनर्जी से मोस्टली डील करती हैं, ये सारी की सारी मोस्टली वियना, ऑस्ट्रिया में ही बेस्ड होती हैं. ओके, सो IAEA headquartered at Vienna, Austria. See, it is not a part of the UN system. It is not, but it reports to the UN system, UN General Assembly and United Nations Security Council. अपनी reports ये yearly या फिर as and when needed ये उनको submit करती है. ठीक है, so it is associated with the UN system but not a part of UN system. Okay, so you can just write it. It is an independent international organization. Independent international organization reports annually to UN General Assembly. ब्रैकेट में लिख लो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, whenever needed. And India is a founding member. Okay, so it is an independent international organization that reports annually to
UN General Assembly and bracket में UNSC when needed. India is a founding member. Written? Written? Yes, sir. ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितनी बेसिक नॉलेज चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ उतनी ही पढ़नी चाहिए, एंड दिस इज एज फार एज यू कैन स्टडी एंड यू शुड स्टडी. देयर इज नो डेप्थ टू व्हाट यू कैन रीड अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, बट यू शुड नॉट. ठीक है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, विल डू दैट. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर. 2020 का है प्रीलिम्स का. Take 1 minute. Do not jump to saying the answers. Sorry, just a second. Yes. Sir, D. Please wait for a few more seconds. Option C होगा सर. Please wait for a few more seconds before giving your answers. Let others complete it first. Okay. We have option D said by someone. We have option C. Anybody else with some different option? A option B, we have an answer. Next. एक ही ऑप्शन रह गया, कोई है बोलने वाला कि बी भी हो सकता है? अच्छा, ऑप्शन सी. So we'll stop here. The answer is B. ठीक है, some use imported uranium and other use domestic supplies. See, nobody is supposed to know कि इस क्वेश्चन का डिटेल क्या होगा या आंसर कैसा होगा, but let us now try to answer the question. ठीक है, in India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while others are not? तो सबसे पहले ये समझो कि IAEA safeguards होंगे क्या. Because it is International Atomic Energy Agency, so it has to do with the nuclear reactors. और यहाँ लिखा भी है nuclear reactors. अब nuclear reactors में इशू क्या होगा? इशू होगा सबसे बड़ा सेफ्टी का और अकाउंटेबिलिटी का. ठीक है, सेफ्टी का और अकाउंटेबिलिटी, ये हमें दो चीजें याद रखनी है. एंड द थर्ड पार्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में या न्यूक्लियर एनर्जी में जो भी केसेस हुए हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज फॉर सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी कल को कोई भी बना के खड़ा हो जाएगा और बोलने लगेगा कि पाकिस्तान ये मत करो, इंडिया ये मत करो, नॉर्थ कोरिया ये मत करो, यूएसए ये मत करो, तो डू यू थिंक दे आर गोइंग टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट देयर स्टेटमेंट्स? बिल्कुल भी नहीं करेंगे. बट बीइंग रिस्पॉन्सिबल पावर्स एंड
विद डिप्लोमेटिक प्रेशर्स एज वेल। थोड़े तो उनको हमें देने भी पड़ेंगे, सम लेट्स से कि कोई ना कोई हमें ऑप्शंस उन्हें देने पड़ेंगे कि उन्हें कंट्रोल या सेफ गार्ड तो रखना ही रखना है, इसीलिए इसका नाम IAEA सेफ गार्ड। ठीक है, सो हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इन चीजों को दिमाग में रखते हुए लेट अस स्टार्ट। ए ऑप्शन, सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम। अब कोई रिएक्टर यूरेनियम यूज करे या थोरियम यूज करे, अगर उसके अंदर कोई इशू आएगा तो इशू तो जो न्यूक्लियर फॉल आउट है या जो उससे सेफ्टी इश्यूज है वो तो दोनों में होंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने फ्यूल बदल लिया, क्योंकि थ्योरियम कैन वेल बी यूज्ड। वी नो हमारा जो न्यूक्लियर 3 स्टेज प्रोग्राम है इंडिया का, उसमें थ्योरियम जो है वो हम यूज करने वाले हैं। इट इज वेरी अबेंडेंट इन इंडिया। यूरेनियम अभी हम डिपेंडेंट है बाहर से मंगवाने के लिए। ठीक है, तो थोरियम ऐसा थोड़ी है कि हम टोटली थोरियम पे जाएंगे और अब वर्ल्ड कम्युनिटी बोलेगी कि हाँ जी अब ठीक है, अब आपको न्यूक्लियर पे हम ध्यान नहीं रखेंगे। सो ये चीज तो नहीं होगी। सी ऑप्शन पे आते हैं। सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। अगेन, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की नेग्लिजेंस है वो तो फॉरेन एंटरप्राइजेस भी कर सकती हैं और डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस भी कर सकती हैं, तो उन दोनों में कोई इशू तो होगा नहीं। उसमें कोई ये भी, अब कोई ये थोड़ी बोल पाएगा कि सम MNC इज मैनेजिंग, सॉरी Sir, excuse me. यस, Sir, एटॉमिक एनर्जी में FDI अलाउड ही नहीं है, तो उससे थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। FDI इंडिया में अलाउड नहीं है, लेकिन हमें ग्लोबली भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया लिखा हुआ है, योर व्हाट यू हैव योर थिंकिंग इज इन द राइट डायरेक्शन ओनली, एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, बट फॉरेन एंटरप्राइजेस ऐसा नहीं है। रशिया जो है, हम लोग जो हमारी कोलैबोरेशंस करते हैं, हमारा लेट से फॉर एग्जांपल कुडनकुलम वाला प्लांट, वो रशिया की जो एजेंसी है उसके साथ हम मैनेज कर रहे थे स्टार्टिंग में, एंड स्टिल रशिया इज हेल्पिंग अस इन मैनेजिंग कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन एंटरप्राइजेस होती ही नहीं है। ठीक है, यू आर थिंकिंग अबाउट अ प्राइवेट प्लेयर, बट एक गवर्नमेंट फॉरेन प्लेयर भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल PSUs होते हैं, तो ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेज एंड अदर बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज। अगेन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैनेज कौन कर रहा है, हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी करनी ही करनी है इंश्योर। तो अगेन, इसको भी हम सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। डी ऑप्शन पे आते हैं। सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा हो सकता है कि दिस माइट बी द आंसर, बट अगेन ये ध्यान रखो कि अगर कोई सेफ्टी से नेग्लिजेंस होगी तो चाहे स्टेट ओन्ड रिएक्टर हो या प्राइवेटली ओन्ड रिएक्टर हो, सेफ्टी तो इससे तो इशू सबको होगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये बोलेगा कि चलो इस पे हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि दिस इज प्राइवेटली ओन्ड। तो अगेन, इसको भी हम सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, बी ऑप्शन पे आते हैं। वैसे बचा तो बी ही है, बट एक बार बी ऑप्शन पे आते हैं। सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। इसमें हम जो एंगल है वो हम सोवरेन एंगल लेके आ सकते हैं कि हम अपनी सप्लाईज से जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाएंगे, क्योंकि डिफेंस इसकी डिफेंस से भी एप्लीकेशंस होती हैं, तो जो भी हम अपनी डोमेस्टिक सप्लाई से बना के रिएक्टर्स बनाएंगे वो हम यूज करेंगे एज वी डीम फिट। ठीक है, क्योंकि आप ब्लैंकेटली सारे रिएक्टर्स पे नहीं ध्यान दे सकते ना, सोवरेन एंगल भी तो आएगा। लेकिन जो ये है कि जो इंपोर्टेड यूरेनियम है, क्योंकि जो यूरेनियम का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जो ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो आराम से ध्यान दे सकती हैं। ठीक है, दे कैन ट्रैक दीज ट्रांजैक्शंस। तो इंपोर्टेड यूरेनियम पे वी कैन से कि ठीक है, इस पे आप अपना सेफ गार्ड अप्लाई कर लो। ठीक है, सो दिस मेक्स मोस्ट सेंस, सो विल गो फॉरवर्ड विद दिस। ठीक है, अंडरस्टूड। चले आगे। ये नेचुरल एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको समझनी पड़ेंगी, एंड इट ग्रोज एज यू कीप मूविंग फॉरवर्ड विद योर क्वेश्चंस। सो विल मूव फॉरवर्ड। हमने
पहले की क्लासेस में एक एम स्ट्राइप्स ऐप की थी, और एक कैटरैट ऐप की थी। तो somebody प्लीज टेल मी कि एम स्ट्राइप्स और कैटरैट ऐप क्या चीजें हैं रिवीजन की तरह। सब कुछ एक्चुअली नाम में ही है, बार बार आप पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो somebody प्लीज एक्सप्लेन कि एम स्ट्राइप्स और कैटरैट क्या चीजें हैं। So that instructs tigers को find करने के लिए। ठीक है, और कैटरैट? एनीवन? ठीक है, ऐसे याद करो, देखो स्ट्राइप्स जैसे ह्यूमन टंग प्रिंट होता है, ह्यूमन रेटिना के ट्रिम प्रिंट होते हैं। सर ये कैटरेक्ट कैमरा। गुड 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 गुड। और ह्यूमन के थंब प्रिंट होते हैं, उसी तरह टाइगर्स के स्ट्राइप्स होते हैं। ठीक है, तो एम स्ट्राइप्स ऐप जो है वो टाइगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी, जैसे हमारे आधार कार्ड होता है ना, उसमें हमारा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, उसी तरह जो एम स्ट्राइप्स की एप्लीकेशन है वो बहुत सारे टाइगर्स को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेगी। कैटरैट ऐसे याद कर लो, कैमरा एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू ट्रैक दीज टाइगर्स। ठीक है, इसी की तरह अब सिम्बा एप्लीकेशन बनी है। आई ट्रस्ट कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी द लायन किंग। ठीक है, सो सिम्बा एप्लीकेशंस जो है इट इज सेम एज एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन बट आइडेंटिफाइज लायंस। सिम्बा पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा लिख लो, सिम्बा के बारे में। एआई बेस्ड, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बेस्ड फोटो आईडी सॉफ्टवेयर, मतलब फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, फोटो आईडी सॉफ्टवेयर ऑफ एशियाटिक लायंस, क्योंकि इंडिया में एशियाटिक लायंस ही हैं। सो एआई बेस्ड फोटो आईडी सॉफ्टवेयर ऑफ एशियाटिक लायंस। तो हम एशियाटिक लायंस के बारे में थोड़ा अपनी नॉलेज ब्रश अप कर लेते हैं। एशियाटिक लायंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलते हैं और सिर्फ गुजरात में मिलते हैं। जो हमारा गिर वाला या गिरनार वाला एरिया है इन काठियावाड़ पेनिनसुला, सिर्फ और सिर्फ वहां पे मिलते हैं। ध्यान रखिए, हम लोग जूज वगैरह नहीं काउंट कर रहे, जैसे देयर आर लायंस इन छतबीड़ जू एज वेल, तो वो नहीं, इन नेचुरल एनवायरनमेंट वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में एग्जिस्ट करते हैं। एशियाटिक लायंस और पूरे एशिया में कहीं नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, और एज कंपेयर टू दी अफ्रीकन लायंस वो थोड़े साइज में छोटे होते हैं, मतलब जो एशियाटिक लायंस हैं दे आर स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन दी अफ्रीकन लायंस। ठीक है, सो एज ए ट्रिविया ऑल्सो, जो देर आर मेजर कैट स्पीसीज, कैट बेस्ड स्पीसीज होते हैं, टाइगर है, लेपर्ड है, कैट्स है एंड लायंस है, देन वी हैव चीता एज वेल, देन वी हैव पैंथर्स एज वेल, ब्लैक पैंथर्स एज वेल, स्नो लेपर्ड्स। तो प्यूमा एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ब्लैक पैंथर का ही अलग नाम है। प्यूमा जो है वो यूएसए में बोला जाता है, ब्लैक पैंथर अफ्रीका में बोला जाता है। ठीक है, तो जो लायंस है ना, स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली लायंस, दे आर दी ओनली कैट स्पीसीज जो कि ग्रुप में रहते हैं, बाकी सारे इंडिविजुअली रहते हैं अपने अपने एरिया में। लायंस आर दी ओनली स्पीसीज जो कि ग्रुप में रहते हैं।
अच्छा, अब ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि जो ग्रुप ऑफ लायंस होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे वुल्फ का पैक होता है, उसी तरह ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड। ठीक है। ऑल्सो जो फीमेल लायंस होती है ना ग्रुप के अंदर, दे आर दी प्राइमरी हंटर्स, नॉट द मेल लायंस। इट इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, बट जो फीमेल लायंस है और लायनेसेस, दे आर दी प्राइमरी हंटर्स। ठीक है। मे बी जैगुआर एंड प्यूमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब है कुछ ऐसा है, किसी एक में नाम में, वी नीड नॉट गो इनटू दैट depth. So is this understood? The Simba application to identify AI-based identification software for Asiatic lions. Group of lions is called pride, and Asiatic lions are slightly smaller than the African counterparts. Also in India, in wild, only and only Gujarat, and for in that matter, the Gir forest or the Girnar mountains, it has the Asiatic lions. Shall we move forward? Students, shall we move forward? वॉइस में लैग अभी भी आ रहा है क्या? Okay. Let's do one thing. Let's take a 5 minute break. Okay. अभी 5:57 हो रहे हैं. Exactly 3 minute break लेते हैं. Exactly 6 o'clock. I'll check it in the background. आपको अगर if you want to have water or something, you can have it. At exactly 6 or 6:02, we'll meet back. Just let's take a 5 minute break. क्या दिक्कत है भाई इसको? अपना I think they are not able to hear us. Excuse me, sir. ये तो छोड़, लैग क्यों आ रहा है हमारी बात में और उनके उसमें? ये तो वॉइस है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना इंटरनेट रिकनेक्ट करो, सर रिकनेक्ट करेंगे तो फिर ये सारा ही, तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बट जो दोबारा से लॉगिन, हाँ, क्लास ही तो ज्वाइन करनी है, हो सकता है। या फिर रुक एक सेकंड, टेस्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो यही तो नहीं दिक्कत आ रही कहीं कि, क्योंकि ये भी थोड़े लैग से ही उठा रहा है। कुछ दिक्कत है, बुला के लेके आइए उनको। मैं अपने क्या पता उनको, न्यूज तो हमारे, अच्छा उनको नहीं पता। क्या दिक्कत क्या रही? हेलो 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 हेलो, कोई तो लैग है मैम, कह रहे हैं कि वॉइस में लैग है, कोई वॉइस में लैग है कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो पहुंच रहा है उसमें थोड़ा लैग है। थोड़ा डिफरेंस है। क्लास दोबारा ज्वाइन करके देख सकते हैं? सॉरी, हमारा एडमिन स्टेटस तो नहीं जाएगा उसमें? रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, तो इसका भी रिकॉर्डिंग का कोई सीन है तो ओबीएस में चल देगा रिकॉर्ड। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, हम अभी जब दोबारा कॉल ज्वाइन करेंगे तो अभी हम एडमिन होंगे ना शायद, हाँ हाँ, तब भी हम होंगे। एक बार दोबारा ज्वाइन कर दो। तो एक बार फॉर्म कर,
मैसेज टाइप कर देते हैं ना। नहीं नहीं, मैसेज के ऊपर बोल ही देते हैं। Then कर दो एक बार। एक मिनट एंड करना है। नहीं नहीं थोड़ा सा- मीटिंग फॉर ऑल सबके लिए एंड होगी ना, हाँ तो सिर्फ हमें लीव करना था, अब बाकी बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे। हाँ चल कर ले फिर। हाँ ठीक है, चल नई कॉल ही ले लेंगे। क्या नाम है अभी मीटिंग में? 950 950 नहीं 940 डोंट कनेक्ट। Recording in progress. हॉटस्पॉट कर दे। अभी सर एक मिनट बोल कर देना, स्पॉटलाइट तो कर देती हूँ मैं। एक बार मैसेज भेज दो कि आप रीजॉइन कर। नहीं नहीं बॉडी को हाँ? ठीक है। Yes, students, is it fine now? Or the problem still persists? यही नहीं अभी, एक बार बोल दो उनको, मैसेज भेज दो कि रीजॉइन कर। आई थिंक 11 के आसपास थे बच्चे। बोलना है हेलो बोलना भी हेलो, हेलो इशू अभी भी आ रहा है या ठीक है? नहीं नहीं, लैग अभी आ रहा है या इज इट फाइन नाउ? एको तो यार, ठीक है कोई बात नहीं। ओके जस्ट अ सेकेंड। टेस्ट स्पीकर हमने कौन सा लिया था? स्पीकर लिया था ना? इंटेल लेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे स्पीकर। इको ठीक है अभी या अभी भी है? पर जो उसने बोला वो इधर क्यों नहीं आया अभी? बोलना अभी कुछ और। सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? Yes, is the system running fine now? Shall we start a class? So एक बार अपने ग्रुप पे बच्चों को बोल दो कि वो यस एक बार ग्रुप पे बच्चों को बोल दो रीजॉइन कर लेंगे फटाफट। सर आपने इसको ऑन कर दो मैं ऑडियो ऑन कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने आप दो। सिर्फ आवाज आ रही है जो बोल रहे हैं। यहाँ से आ रही है, ठीक है। हाँ एक बार वो ठीक। Yes, please tell me when the students have rejoined. ऑलमोस्ट आ रहा हूँ 9 बजे से। We'll wait for 1 more minute.
Has everybody rejoined? Can you please put up a message in your groups for people to come as soon as possible? कितने लोग हैं अभी भी? यार ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों का रह जाए ना। हाँ हाँ डाल दो। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही होगी, देखो एक बार। ओके, स्टूडेंट्स आगे सारे शुरू करें? यस यस, स्टूडेंट्स आगे सारे शुरू करें? Okay, so let's start. Our next topic is International Space Station, abbreviated as ISS, International Space Station. लिख लो इसके बारे में थोड़ा। Only operational space laboratory या लैब लिख लो बस, ओनली ऑपरेशनल स्पेस लैब। क्या है कि हमें जीरो ग्रेविटी में, सब 0 डिग्री टेम्परेचर्स में और काफी जो स्पेस के एनवायरनमेंट्स होते हैं उसके अंदर काफी सारे हमें वो करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। अब वो कंडीशंस इंडिया अपने अर्थ पे रेप्लिकेट करनी ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा, जहां पे हम लोग अपनी वो करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, या फिर जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीरो ग्रेविटी और सब जीरो जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके लिए करते हैं, ठीक है। सो ओनली ऑपरेशनल स्पेस लैब। अभी रशिया और चाइना दोनों अलग अलग अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया भी इन इट्स लॉन्ग टर्म गोल अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने के लिए इट एस्पायर्स। ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है कि इंडिया को अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो उस सब में हम अभी नहीं जाएंगे, उसका आप एक बार अपने प्रीवियस ईयर के जितना भी एनालिसिस होता है उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो जो बेनिफिट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हैं वो ही इंडिया के भी होंगे अलॉन्ग विद सोवरेन बेनिफिट्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक बार ये मेंशन कर लो कि इफ दिस इज अर्थ, तो ये 400 किलोमीटर्स की ऑर्बिट में है, रोटेट करता है, ठीक है। ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ ट्रेजेक्टरी ऑफ 400 किलोमीटर्स। नीचे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, यूएसए, रशिया, कनाडा, जापान, यूरोपियन यूनियन। ऑपरेट करने के लिए ये कंट्रीज हैं, बाकी अगर एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह के लिए बाकी कंट्रीज भी केस टू केस बेसिस पे दे कैन गो। सो यूएसए, रशिया, कनाडा, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। इट कंप्लीट्स द जर्नी इन 1.5 आवर। एक अर्थ की जो पूरा चक्कर लगाता है ना ये, वो 1.5 घंटे में लगाता है, ठीक है।
तो यानी एक दिन में 18 बार अर्थ के चक्कर लगाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो तो आपने लिख ही लिए हैं। इससे रिलेटेड हमें ऑर्बिट्स पढ़नी है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स मेनली। लेट्स से दैट दिस इज अर्थ, first orbit is low earth orbit, abbreviated as LEO, low earth orbit. Range is from 180 to 2000 kilometers. Next we have is mid earth orbit. Mid earth orbit, इसकी रेंज है फ्रॉम 2000 किलोमीटर्स टू 3500 780 kilometers. From 2000 to 3500 780 kilometers. ये नंबर कहां से आया बताता हूं अभी। इसके बाद है लास्ट हायर अर्थ ऑर्बिट। 3500 780 से ऊपर जितनी भी ऑर्बिट्स होंगी वो सारी की सारी हायर अर्थ ऑर्बिट्स में आएंगी, ठीक है। हायर अर्थ ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक वैल्यू वाली ऑर्बिट है विच इज नोन एज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, which is at 35,786 किलोमीटर्स। इसका पॉइंट क्या है मैं बताता हूं अभी, ये लिख लो। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर्स। तो ये अर्थ है, ये ऑर्बिट है, लेट्स से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि इस डिस्टेंस पे या इस ऑल्टीट्यूड पे जो हमारी सैटेलाइट होगी वो ऐसी हाइट पे है कि वो किसी भी पॉइंट के ऊपर परमानेंटली ऊपर रहेगी, ठीक है। मैंने पहले जब ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताया था कि वो 1.5 घंटे में एक रिवॉल्व कर लेता है, यानी एक पॉइंट के ऊपर से ISS 18 बार एक दिन में चक्कर मारता है। लेकिन इसका क्या है कि यहां पे जो सैटेलाइट होगी इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एट 35,786 किलोमीटर्स, ये एक पॉइंट के ऊपर परमानेंटली रहेगी। फायदा क्या है इसका? लेट्स से इंडिया है, इंडिया के ऊपर हमने 3 सैटेलाइट्स रख दी। 3 ट्रायंगुलेशन के लिए होती है ताकि हमें मोस्ट परफेक्ट लोकेशन मिल जाए। ट्रायंगुलेशन यू ऑल मस्ट बी नोइंग, ठीक है। 3 सैटेलाइट्स लेट से रख दी, वैसे हम और भी रख सकते हैं। तो किसी भी पूरे इंडिया के ऊपर, पूरे इंडिया के अंदर और आसपास के कुछ एरिया के लिए जो भी हमें कभी भी लोकेशन, लाइव फोटोग्राफी, लाइव इमेजरी, हमें प्रॉपर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स अगर हमें चाहिए तो ये हमेशा की हमेशा अवेलेबल रहेंगी। आप डीटीएच देखते हो, टाटा स्काई होता है, एयरटेल का डीटीएच है, तो इनकी भी जियोसिंक्रोनस, वैसे तो लोअर अर्थ ऑर्बिट से काम चलाते हैं ये बहुत सारी सैटेलाइट्स, बट जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स हैं वो परफेक्ट सैटेलाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा की हमेशा इसी लोकेशन के ऊपर रहेंगी और हमेशा विद लीस्ट लेटेंसी वी कैन कोऑर्डिनेट। ओके, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का ऑल्टीट्यूड क्या होता है, 35,786 किलोमीटर्स, ठीक है। अंडरस्टूड? हायर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जो अभी स्टारलिंक वाला है सैटेलाइट, इंटरनेट वाया सैटेलाइट, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट्स लगाएंगे, उसके थ्रू पॉसिबल होगा। इसकी एप्लीकेशन इज फॉर वेदर सिस्टम्स,
and communication systems for military defense applications, उसके लिए geosynchronous orbits हैं. ठीक है, shall we move forward? Shall we move forward if this is understood? Yes, sir. Okay. So recently दो terms use हुई हैं. Number one, as we all know, is parole. Number two is furlough. Furlough recently news में है. ठीक है, तो लिख लो एक बार फरलो क्या होता है, लिख लो, बाद में समझाता हूं. रेफर्स टू फरलो, FURLOUGH. It refers to leave of absence for a specific time period to a convict from prison. A convict from prison refers to granting leave of absence for a specific time period to a convict from prison. ठीक है, नीचे लिखो, इट इज नॉट, नॉट को कैपिटल्स में लिखना, नॉट ए लीगल राइट फॉर अ प्रिजनर. मतलब ऐसा नहीं है कि एज लीगल राइट कोई बोले कि मुझे फरलो के लिए निकाला जाए. समझने के लिए ना इसे ऐसे समझो कि एक टाइप की छुट्टी है, कि बहुत टाइम से प्रिजन में है, दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट है, तो थोड़ी देर बाहर जाके घूम के आते हैं और सोसाइटी में थोड़ा बहुत घुल मिल के आते हैं. बर्गर खाने का मन कर रहा है, बर्गर खा के आते हैं. छुट्टी है ये प्रिजन से कुछ टाइम के लिए. जैसे स्कूल में जाने का मन नहीं है, एक दिन की छुट्टी मार लेते हैं, उसके लिए होता है फरलो. अच्छा, इसके जो रीजंस होते हैं ना फरलो ग्रांट करने के लिए, दे आर नॉट स्पेसिफाइड. एक्चुअली प्रिजन्स जो है, ये भी नीचे एक बार लिख लो, प्रिजन्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो एनी डे जो हमारी प्रिजन्स है वो भी स्टेट सब्जेक्ट ही होगा. तो क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो हर स्टेट के अपने अपने अलग रूल्स होंगे, एंड एज एंड व्हेन इट प्लीजेस देम दे कैन ग्रांट फरलो टू द प्रिजनर्स. पेरोल में लिख लो डिफरेंस. इट इज ग्रांटेड फॉर अ prisoner to meet a specific emergency or exigency, whatever the word you want to use, granted for a prisoner to meet a specific emergency. तो मतलब पेरोल में कोई रीजन होगा तभी बाहर निकालेंगे उसे. ठीक है, फरलो में कोई रीजन की जरूरत नहीं है. कुछ टाइम के बाद इफ somebody wants to go out, they can apply, or the state government as and when it pleases, it can grant furlough to prisoners. ठीक है, no reason required, some emergency or some reason is required in parole. ठीक है, this is not a legal right, this also is not a legal right. कोई भी ऐसे एज अ मैटर ऑफ राइट ये नहीं बोल सकता कि मुझे प्रिजन से बाहर निकाला जाए क्योंकि मुझे घूमने का मन हो रहा है. इसके नीचे फरलो के नीचे एक और अपना पॉइंट लिख लो. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू break the monotony of imprisonment and enable the convict to integrate with society. तो अगर इन दोनों में से किसी के बारे में या इन दोनों के डिफरेंस या किसी भी वर्ड के बारे में if the question comes, so I trust will you be able to handle it? मेडिकल इमरजेंसी, घर में किसी की डेथ हो गई या फिर
कैंसर ट्रीटमेंट करवाना है, इस सब के लिए। नॉर्मली मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए या फैमिली इमरजेंसीज के लिए दिया जाता है। इज इट अंडरस्टूड? शैल वी मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स? Yes, sir. Move forward. टाइम पीरियड किसी का नहीं होता। सो नेक्स्ट इज Montreux Convention. Montreux is a city in Switzerland. Montreux Convention. साइड में लिख भी लो, 1936 में साइन हुई थी। कंट्रीज मेंशन कर लो एक बार, समटाइम्स पूछ ली जाती है। ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, यूगोस्लाविया, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, और ब्रैकेट में रशिया डाल देना अब तो, एंड टर्की। नीचे लिखो, इसके कॉन्सेप्ट में इट गिव्स ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, यूगोस्लाविया, यूके, यूएसएसआर ब्रैकेट रशिया एंड टर्की। अब नीचे लिखो गिव्स टर्की, नीचे लिखो गिव्स टर्की कंट्रोल ओवर वाटर रूट in the Black Sea. Gives Turkey control over the water route in Black Sea. ठीक है, नीचे 2 पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स बना के लिख लेना। लिमिट्स इट लिमिट्स द पैसेज ऑफ सिविलियन वेसल्स एंड मिलिट्री वॉरशिप्स। सिविलियन वेसल्स एंड मिलिट्री वॉरशिप्स कहां काम आती है वो बताता हूं। हम लोगों ने ब्लैक सी पढ़ा था, ब्लैक सी की लोकेशन देखी थी सारी की सारी। ब्लैक सी में 2 स्ट्रेट्स थे। Yes, ब्लैक सी में 2 स्ट्रेट्स थे, what is state? बॉस्फोरस स्ट्रेट और दूसरा कौन सा है? D से नाम है डार्डेनेलिस। डार्डेनेलिस। इसमें से बताओ बॉस्फोरस कौन सा और डार्डेनेलिस कौन सा है? लेफ्ट में कौन सा है ये बताओ। ये इन दोनों में से लेफ्ट में बॉस्फोरस है या डार्डेनेलिस है? सर राइट में बहुत होगा सर। गुड, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, यहाँ डार्डेनेलिस स्ट्रेट है। मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सी का बी और बॉस्फोरस स्ट्रेट का बी, ये दोनों पास पास है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, इस ट्रीटी का क्या मतलब है? अच्छा ये देखो, आपको पता पहले लग जाना चाहिए था कि ग्रीस है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, सोवियत यूनियन, टर्की, जापान, बिकॉज इट इज द प्री वर्ल्ड वॉर 2 एरा, तो यूनाइटेड किंगडम, जापान, ये सब भी हैं। तो ब्लैक सी में जो हेवीली मिलिटराइजेशन होती है उसके वहां पे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी से वॉरशिप्स या सिविलियन वेसल्स आएंगे, और जो भी लड़ाई होती है, ये देखो यहां से लेकर
यहां तक टर्की है पूरा का पूरा, ठीक है, और एंटर करेंगे तो ये टर्की की टेरिटरी के बीच में से एंट्री करेंगे। और मिलिट्री वॉरशिप स्पेशली जो न्यूक्लियर वॉरशिप्स हैं, दे आर अ वेरी बिग थ्रेट टू द इमीडिएट रीजन। कोई ज्यादा बड़ा सीन नहीं है ये, इसके अंदर अगर कोई भी लड़ाई होती है तो इन कंट्रीज को सबसे ज्यादा इशू आता है, और किसी कंट्री की सोवरेन टेरिटरी के बीच में से लेके जाना वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो मॉन्ट्रो कन्वेंशन, और उसने बोला कि बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनेलिस स्ट्रेट, मतलब कन्वर्सिंग टू द रीजन ऑफ ब्लैक सी, यहाँ पे जो भी सिविलियन वेसल्स या फिर मिलिट्री वॉरशिप्स होंगे इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो टर्की के पास कंट्रोल होगा। क्यों ये न्यूज में था कि प्रेजेंटली जो अपनी रशिया की वॉरशिप्स है ना, दे हैव सेड कि हमें मतलब उनको जो बाहर स्टेशन है उनको भी बाहर लेके आना है, जो यहाँ वाली है उनको भी कहीं ना कहीं जाना है अपने अपने जो भी एक्टिविटीज है करने के लिए, तो उसको टर्की ने स्टॉप किए, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में है। इसके अंदर एक लूप होल है एक्चुअली। लूप होल ये है कि जो बाहर से शिप्स आ रही है ना, मिलिट्री वॉरशिप्स जो अपनी कहीं एक्सरसाइज में थी या बाहर स्टेशन थी, अगर उसको कोई कंट्री वापस बुला ले, जैसे रशिया वापस बुला ले, तो वो अलाउड है, उसमें टर्की रोक नहीं सकता। बट अगेन अ वेरी पावरफुल ट्रीटी, सो यू मस्ट नो। अच्छा, मॉन्ट्रो कन्वेंशन हमने पढ़ी है, इससे देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉन्ट्रो कन्वेंशन थी ना ये, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। कभी भी इसमें ना कंफ्यूज मत करना, ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक रिकॉर्ड है, एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का आपको मतलब पता लग गया, मतलब एक ट्रीटी होती है, तो इन सब कंट्रीज ने ट्रीटी करी कि टर्की को उसकी इंटरनल वाटर्स में हम लोग वी विल रिस्पेक्ट टर्की सोवरेन इंटीग्रिटी, वो है। अब रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड मतलब किसी भी चीज की लिस्ट रखते हैं हम लोग, किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसको ऐसे याद रखना। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड जो है, एक बार लिख लो, अंडर रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ब्रैकेट में वेटलैंड्स लिख लेना, इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड्स। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड अंडर रामसर कन्वेंशन ब्रैकेट वेटलैंड्स इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड्स of international importance where, now this is important, ठीक है, इसको अच्छे से समझ के लिखना, where changes in ecological character have occurred, are occurring, are occurring, or are likely to occur as a result of development, pollution, or human interference। ठीक है, मतलब समझो, रामसर कन्वेंशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं वो हम इंक्लूड करते हैं इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली सुल्तानपुर वाला जो वेटलैंड है और गुजरात का जो वेटलैंड है वो इंक्लूड हुए थे, एंड 2 more wetlands were subsequently added। अच्छा, इन वेटलैंड्स को ना अच्छे से, देयर आर 44 वेटलैंड्स इन टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक बार 1 to 44 एक बार पढ़ लेना विकिपीडिया पे जाके कि कौन कौन से हैं। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, उसका आंसर यू कुड इजीली एलिमिनेट एंड गेस अगर आपको पता होता कि वेटलैंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड जो है, रामसर कन्वेंशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं हम उनको बताते हैं, बट मॉन्ट्रो रिकॉर्ड वो है
कि वो वेटलैंड्स जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या पोल्यूशन की वजह से जिनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो वेटलैंड्स की प्योरिटी या इकोलॉजिकल उनका कैरेक्टर है, या तो उसमें चेंजेस हो चुके हैं या हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं, यानी जो वल्नरेबल जो वेटलैंड्स हैं उस वो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स के अंदर आता है। ठीक है, नीचे एक और लाइन लिख लो, इट हाईलाइट्स wetland sites in need of priority conservation. Highlights wetland sites in need of priority conservation. इस लाइन से आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा, इस चीज को भी याद रखना कि इट कम्स अंडर दी रामसार कन्वेंशन। ठीक है, नीचे मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, रामसार कन्वेंशन फॉर वेटलैंड्स। रामसर इज इन, कंट्री बताओ कोई, रामसर कौन सी कंट्री में है? रामसर इज इन विच कंट्री? गुड, इट इज इन ईरान। अच्छा, तो जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड जो है, वैसे रामसर कन्वेंशन में इंडिया के 44 और सो साइट्स हैं, बट मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में देयर आर 2 साइट्स। नंबर 1 इज केला देवी, और मतलब दोनों स्पेलिंग इसकी चलती है, केला देवी या फिर केवला देव नेशनल पार्क। दिस इज इन राजस्थान, केला देवी और केवला देव नेशनल पार्क इन राजस्थान। द सेकेंड साइट इज लोकटक लेक। स्टेट बताओ मुझे कोई इसकी, लोकटक लेक कौन सी स्टेट में है? मणिपुर। गुड, मणिपुर। लोकटक लेक मणिपुर, यानी ये जो दोनों वेटलैंड्स हैं, ये वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, कि इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं ह्यूमन इंटरैक्शंस वगैरह की वजह से। यस 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 यस, गुड, बराक रिवर। और बराक रिवर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल वाटरवे 6। अगेन इकोनॉमिक्स का पार्ट है, सो यू कैन लिंक इट। जो हमारा नेशनल वाटरवे 6 है वो बराक रिवर पे ही है। ठीक है, सो इसमें एक इंडिया का चिली का लेक था जो कि उड़ीसा में है। इट वॉज इंक्लूडेड इन दिस मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, बट ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ अ गवर्नमेंट उसको हमने रिवर्स कर दिए जो भी चेंजेस थे, और अब इट इज नाउ नॉट वल्नरेबल, सो उसको इस रिकॉर्ड से हटा भी दिया। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस हमें ये पता लगता है कि जो साइट्स वल्नरेबल हैं, अगर उनमें कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर सक्सेसफुल तो वो इस रिकॉर्ड से हट भी जाती हैं। ठीक है, परमानेंट स्टेटस नहीं होता इससे। So will you be able to differentiate between Montreux Accord and Montreux Convention? Will you be able to differentiate between the two, Montreux Accord and Montreux Convention? Students? Yes, sir. Okay. Moving forward. Flag Code of India. (2002). वैसे तो ये एक टाइप का डोरमेंट टॉपिक है, पूछा नहीं गया है,
बट क्योंकि अब रिसेंटली इसमें चेंजेस हुए हैं, लक्ष्मीकांत के बिल्कुल एंड में दिया गया है, 2 पेज हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें से फालतू की चीजें एलिमिनेट करके एक बार अच्छे से फ्लैग कोड पढ़ लेना, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या क्या रूल्स होते हैं क्या क्या रूल्स नहीं होते, एक बार उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, कुछ भी रटना मत, ठीक है, क्रैमिंग कुछ भी नहीं करनी है आप लोगों को। तो प्रेजेंटली जो है एक बार लिख लो, फ्लैग्स, सॉरी ओनली, ओनली को कैपिटल में लिखना, ओनली फ्लैग्स मेड बाय हैंड स्पन, मतलब हाथों से बनाया गया, हैंड स्पन एंड वूवन, वूवन वूल, ठीक है, या तो वुलन होगा, कॉमा कॉटन, कॉमा सिल्क, खादी क्लॉथ वर अलाउड। पहले सिर्फ और सिर्फ हैंड स्पन या वूवन मेड ऑफ वूल कॉटन एंड सिल्क, खादी क्लॉथ वर अलाउड। पहले जो ओनली लिखा है ना, अब यहां मतलब यहां एक एरो मार के बड़ा बड़ा लिख लो कि अर्लियर, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि ओनली दिस इज अलाउड और टिक मार के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, इजी क्वेश्चन, अर्लियर इट वाज अलाउड, ठीक है। नाउ अब लिख लो, मतलब कैपिटल में, नाउ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट ऑफ पॉलिएस्टर मेड, पॉलिएस्टर मेड नेशनल फ्लैग्स इज अलाउड, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंपोर्ट भी अलाउड है, पॉलिएस्टर मेड नेशनल फ्लैग्स, ठीक है, अमेंड हो गया। सो अब ये बस ये छोटी सी इसका पॉइंट है, बाकी का जो डिटेल्ड है वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। सो वी विल गो टू लक्ष्मीकांत एंड यू विल रीड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, यू हैव टू रिमेंबर कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक, हो सकता है कि आगे भी ना पूछा जाए, बट क्योंकि ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो हम कर लेते हैं। अच्छा, इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा फ्लैग है उसकी डायमेंशंस होती है कुछ, ठीक है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ या हाइट जो मर्जी आप चाहो, तो इसकी रेशो बताओ मुझे क्या होता है, इसकी रेशो क्या होती है, जैसे 1 ऑप्शन भी दे देता हूँ, 1:1 होती है, बी 2:3 होती है, सी 3 लेंथ इज टू ब्रेड्थ बताना है, 3:2 होती है, या डी 4:5 क्या होती है बताओ। ऑप्शन सी is to two. गुड, 3:2। कोई भी इंडिया फ्लैग होगा वो कभी भी आप स्क्वायर फॉर्म में बनाओ, गोले वाले फॉर्म में बनाओ, नहीं, मतलब एज अ लोगो जब आप बनाते हो तो इज अ डिफरेंट थिंग, अगेन फ्लैग कोड में लिखा हुआ है कि क्या 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 कर सकते हो, बट जब भी फ्लैग बनेगा वो 3:2 की रेशो में बनेगा, लेंथ 3, ब्रेड्थ या हाइट 2 रेशो, यानी 1.5 टाइम्स जो है हमारी लेंथ बड़ी होगी। मूविंग फॉरवर्ड, we'll do this, just a second, understanding from an image, oh god, I think download ठीक से नहीं हुई है, anyway छोड़ो, लिखो कोणार्क टेम्पल,
also known as Sun Temple, also known as Black Pagoda. In Odisha. Very important. अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग भी मिला हुआ है. हमने वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में डिस्कस किया था, तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग भी मिला हुआ है इसे. इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लो. इट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड. क्योंकि उड़ीसा में है तो यू कैन मतलब अंडरस्टैंड कि इट इज लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल. मतलब बस बे ऑफ बंगाल लिख लो, आपको समझ आ जाएगा. इट वॉज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देव वन of Eastern Ganga dynasty. Ancient and medieval में you will read about this Ganga dynasty. ठीक है. So King Narsimha Dev one of Eastern Ganga dynasty. साथ में लिख लो कि मिड 13th सेंचुरी या फिर 1250 AD. नॉट इम्पॉर्टेंट बट कभी कभार पूछ लिया जाता है तो एक बार बस पता हो कि मिड 13th सेंचुरी के आसपास इसे बनाया गया था. ठीक है. अब इसका क्योंकि इट्स अ टेम्पल तो कौन से स्टाइल का है वो भी लिखना जरूरी है. सो इट इज कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि ये रीजन ही कलिंग रीजन है. कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज अ सब स्टाइल ऑफ नगर स्टाइल. हमने नगर और द्रविड़ के बारे में पढ़ा और डिटेल में आप अपने आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे. सो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज अ सब स्टाइल ऑफ नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन बट एट द सेम टाइम वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एज वेल. ठीक है. ये करो, जस्ट अ सेकेंड. टेक अ मिनट और इसको करो. was asked in 2017. When I say तभी अपने ऑप्शंस बताना, उससे पहले मत बताना. Let others attempt it as well. Wait. Yes, बताइए. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. और बताइए. क्या? डी. ठीक है. और अच्छा डी. चलो डी. और बताइए.
Anybody else? B for Bangalore, ठीक है. Anybody else? चलो अब इसे सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में आपके पास जो भी मतलब चाहे आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हो चाहे ना करी हो, आपके पास अगर बेसिक नॉलेज भी होगी ना तो भी आप थोड़ा सा एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स. ठीक है. नंबर 1 इज अरसवल्ली, वी डोंट नो व्हाट इट इज. अमरकंटक, again we don't know what it is. Third is Omkareshwar, and then we have to select the correct answers. ये बाद में देखते हैं. We know कि जो अभी हमने जैसे पढ़ा कि सन टेम्पल्स हैं तो मतलब सन गॉड को डेडिकेटेड होंगे, बट ओमकारेश्वर जो नाम है वो शिव जी का नाम है. ठीक है. तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. ओमकारेश्वर हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो शिव जी का नाम है, बट हमसे पूछा गया सन टेम्पल. नेक्स्ट आ गया अमरकंटक. हमें अमरकंटक हिल्स की लोकेशन याद है कहां पर है, कौन सी स्टेट में है? अमरकंटक ग्लेशियर नहीं, वो अमरनाथ ग्लेशियर है. वी टॉकिंग अबाउट अमरकंटक हिल्स. इसकी कौन सी स्टेट में है ये? somebody please tell me. चलो गुड 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 गुड. मध्य प्रदेश की लोकेशन हम ध्यान रखते हैं अपने दिमाग में. इससे नर्मदा रिवर आती है और इसके थोड़े सदर्न रीजन से तापी भी आती है. आपने ना अपने ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि एक रेडियल पैटर्न आता है ऑफ रिवर फॉर्मेशन, कि एक जगह से रेडियली कि ऊपर भी रिवर आ रही है, नीचे भी आ रही है, लेफ्ट भी आ रही है, राइट भी आ रही है. राइट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग दामोदर रिवर आती है अमरकंटक हिल्स के, लेफ्ट में आती है नर्मदा, साउथ में आती है तापी, और ऊपर कोई गंगा की ट्रिब्यूटरी है. आई एम अनश्योर एट दिस मोमेंट. ठीक है. तो अमरकंटक ये हमने पढ़ा था कि अभी कोणार्क टेम्पल जो सन टेम्पल है वो उड़ीसा में है. ठीक है. तो हम अमरकंटक को भी एलिमिनेट कर देंगे. एक बचा अरसवल्ली विच इज द करेक्ट आंसर, वन ओनली, ए. ठीक है. क्योंकि हम मतलब अपने आंसर फॉलोइंग में थोड़ा लॉजिकल फ्लो भी अगर रखेंगे तो इट मेक्स थिंग्स इजियर. सो इज इट फाइन? शैल वी मूव फॉरवर्ड? Students, shall we move forward? Yes, sir. Okay. अब हम let us review some locations. Okay. Recently, if I hope कि आप लोगों ने जो चेरनोबिल टीवी सीरीज है वो देखी होगी. It was a disaster, nuclear disaster in 1985 due to flawed reactor design. जब आप वो सीरीज देखोगे आपको पता लग जाएगा, मतलब कभी ना कभी अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख लेना. इट्स अ गुड टीवी सीरीज. तो फ्लॉड रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन था और जो उसके इंजीनियर्स थे या ऑफिशियल्स थे उनकी नेग्लिजेंस भी थी. ठीक है. तो उस वजह से जो चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर है फट गया था. कुछ रेडियस तक जितने ह्यूमंस थे सारे इवेपोरेट हो गए थे. और जो ये रिवर आती है ना साथ में, ये वाली रिवर, ये रिवर में पानी सारा का सारा वो इशू प्रॉब्लम करने लग गया था. तो जो ये वाला जो रीजन है इट इज अराउंड 1000 स्क्वायर माइल्स. ये रीजन अभी भी प्रेजेंटली बहुत ज्यादा इफेक्टेड है. ठीक है. तो जो ये एक्सक्लूजन जोन है, तो ये चेरनोबिल वाला जो एरिया है या चेरनोबिल न्यूक्लियर जो है, इट लाइज इन यूक्रेन एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, बेलारूस वाले बॉर्डर पे. रशिया बॉर्डर नहीं,
बेलारूस वाले बॉर्डर पे, ठीक है। पहले यूएसएसआर का पार्ट था, क्योंकि 1985 की बात है तो यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। यही एक मेजर रीजन था कि आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर जब यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने फिर डीन्यूक्लियराइजेशन की पॉलिसी ले ली, बिकॉज दे हैड सीन कि क्या उसके फॉलआउट्स होते हैं, ठीक है। बस ये लोकेशन you need to understand, and if you are more curious और थोड़ा entertainment भी चाहिए तो चेरनोबिल, I'll just write it, इस जगह का नाम चेरनोबिल है, चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर या चेरनोबिल। अगर एंटरटेनमेंट चाहिए या थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन चाहिए तो यू कैन गो एंड वॉच। नेक्स्ट, क्योंकि यू मस्ट हैव आल्सो बीन सीइंग एंड ट्रैकिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जो हमारे नेम्स ऑफ मैलवेयर होते हैं या वायरस होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने नोट्स में नाम मेंशन कर लो, हर्मेटिक वाइपर, ये टाइप का मैलवेयर है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे समझो, वाइपर, वाइपर मतलब साफ कर देना, जो कोई साफ करे। तो जो भी यूक्रेन के अंदर कुछ कंप्यूटर्स वगैरह हैं, ये वाला जो मैलवेयर है वो उनका सारा का सारा डेटा साफ कर रहा है, ठीक है। सो क्योंकि न्यूज में है तो एक बार लिख लो, हर्मेटिक वाइपर। यू कैन इजीली कंफ्यूज इट विद द नेम ऑफ अ स्नेक एज वेल, ठीक है। थोड़ा क्योंकि वाइपर्स भी होते हैं स्नेक में, रसल वाइपर्स होते हैं वगैरह वगैरह होते हैं, तो कंफ्यूज मत करना, वो VIPER वाला वाइपर होता है, ठीक है। ये WIPER वाला, बस ऐसे समझ लेना, वाइपर मतलब साफ करना, और जो हार्ड डिस्क साफ करता है वो एक मैलवेयर है। हर्मेटिक वाइपर, वाइपर इज द नेम, ठीक है। नेक्स्ट इज important names of some missions, some expatriates and other missions that India has conducted in the recent times, ठीक है। तो मैं नाम लिखूंगा कुछ मिशंस के, कुछ ऑपरेशंस के, we will talk and we will try to understand कि कौन सा मिशन किस चीज से है, ठीक है। नंबर 1 इज ऑपरेशन गंगा, नंबर 2 इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें ब्रैकेट में 1 और 2 लिख लेना, क्योंकि 2 भी हुआ था, ठीक है। नंबर 3 इज वंदे भारत मिशन, नंबर 4 इज ऑपरेशन देवी शक्ति। ये 4 मिशन है। नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं, ऑपरेशन गंगा। somebody please tell me क्या चीज है ऑपरेशन गंगा, if you must have been tracking the current affairs. ठीक है, जो यूक्रेन में इंडियन ओरिजिन या इंडियन नेशनल्स हैं उनको वापस इवैक्यूएशन अटेम्प्ट जो है उनको वापस लाने वाला, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। तो यू कैन जस्ट ब्रैकेट में राइट यूक्रेन, ठीक है। नंबर 2 ऑपरेशन समुद्र सेतु, 1 and 2। नाउ व्हाट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु? ठीक है, ओके। नाम देखो, समुद्र सेतु, समुद्र मतलब ओशियन से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड, सेतु मतलब ब्रिज, ठीक है। तो समुद्र पे ब्रिज बनाया जाएगा। अब समुद्र पे ब्रिज बनाने के लिए यानी कुछ लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है। तो इससे
ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 and 2 मतलब इंटरचेंजेबली यूज हुआ भी था। इंडियन नेवी का ऑपरेशन था, ठीक है, यहाँ लिखो इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का ऑपरेशन था इन कोविड टाइम्स। कोविड में जब लोग फंसे हुए थे हमारे आसपास के रीजन्स में, स्पेशली इन इंडियन लिटोरल स्टेट्स, इंडियन नेवी के वेसल्स हुए थे जो कि उनको वापस लेके आए थे वाया ऑपरेशन समुद्र सेतु। एंड स्पेशली इन द सेकेंड वन, इन द सेकेंड कोविड वेव, इसको ऐसे सेकेंड कोविड वेव से याद रख लो, सेकेंड कोविड वेव में इंडिया में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा थी। तो आसपास के रीजन से जो नेवी ने ऑपरेशन चलाया था टू गेट दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम दी इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स, वो ऑपरेशन समुद्र सेतु का पार्ट था। इसके बाद जब इंडिया ने सप्लाई भी किया था कुछ सप्लाईज ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह वगैरह, तो अगेन बाय इंडियन नेवी इटसेल्फ, वो भी ऑपरेशन समुद्र सेतु का था। नेक्स्ट इज वंदे भारत मिशन। अब बताओ वंदे भारत मिशन क्या चीज है? No. वो वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन को लीड करने वाला वो वंदे भारत ट्रेन हैं जो कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगी, मतलब पीपीपी वाला पार्ट है, बट वो वंदे भारत ट्रेन है, ये वंदे भारत मिशन है, दिस इज डिफरेंट। कोविड में जब लोग फंसे थे ना, जब कोविड के लॉकडाउन हुए या जब लगे थे, तो एयर इंडिया था और एयरफोर्स ने भी हेल्प करी थी। तो जो बाय एयर या फिर एक जो पूरा हमने बाय लैंड ऑल्सो बाय, वैसे ऑपरेशन समुद्र सेतु इज कैन बी सेड कि एक सब पार्ट था वंदे भारत मिशन का ही। तो जब हमने पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर अपने जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको इंडिया में वापस लेके आए थे, वो वंदे भारत मिशन था। स्पेशली वंदे भारत की फ्लाइट्स चली थी, जैसे यहाँ से कुछ बच्चे मान लो कनाडा पढ़ने गए थे, उनका काम शुरू होने वाला था बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कोविड वेव या फिर आफ्टर सेकेंड वेव एज वेल। तो जब वो जा रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड, तो अब लोगों को लाने के लिए हमारी फ्लाइट को वहां जाना पड़ेगा ना, तो ये लोग यहाँ से वहां पे उस टाइम गए थे यूजिंग दी वंदे भारत मिशन ओनली। तो इन सिंपल वर्ड्स ये वो है जब इंडिया ने अपने नेशनल्स को बाहर की कंट्रीज में से लेके आए ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑपरेशन देवी शक्ति। अब ये ऑपरेशन देवी शक्ति बताइए क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नहीं, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऐसे याद करो कि रिसेंटली 1 ईयर या 2 ईयर में ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई है जब इंडिया को अपने नेशनल्स को वापस लाना था। एक तो हमने कोविड में लेके आए थे, एक अभी यूक्रेन से वापस लेके आए, और ऐसा क्या हुआ था कि इंडिया को अपने नेशनल्स को वापस लाना पड़ा था? गुड 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 गुड। अफगानिस्तान में जब तालिबान टेक ओवर हुआ था ना, तो जो वो मिशन था जब वापस लाए गए थे, दैट वाज ऑपरेशन देवी शक्ति। मेनली क्या, वैसे इट वाज डन बाय इंडियन एयरफोर्स। बहुत पहले के टाइम पे, मतलब एट द वेरी इनिशियल स्टेजेस एयर इंडिया वाज आल्सो यूज्ड, बट इट वाज एन ऑपरेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये चारों लिख लो। यू नेवर नो, क्या पता मैच द फॉलोइंग में आ जाए या जैसे भी आ जाए, या इंडिविजुअली ऑल्सो दे कैन बी आस्क्ड। So that was all for today from my side. If you have some doubts, you can ask me, and then we'll conclude today's class. Yes, any doubts? No, sir. Okay, so we'll conclude our class today. Thank you for attending the class.
and have a nice day. Have a nice weekend as well. सेव तो नहीं होना